آپ میں سے وہ لوگ جن کے پاس اسکل نہیں ہے، اور میں یہ 3 دفعہ ریپیٹ کروں گا، وہ پلیز کسی یہ مت کریں کہ چونکہ ان کے پاس اسکل نہیں ہے اور تھوڑا سا ان کو یہ اعتماد ہے کہ وہ اپنی کہانیاں سنا کے کلائنٹ کو کر لیں گے. ایکچولی میں آپ امبیسڈر ہیں پاکستان کے. یہ جو فرسٹ پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ آپ کا ایتھیکلی مورل گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. جو گورا ہے اس کی نظر میں آپ ہے پاکستان. اگر آپ نے اس کو اچھے سے ڈیل کیا، ساری دنیا آ جائے گی، وہ پاکستان کو اچھا ہی سمجھے گا. اور اگر آپ نے اس کو $10 پہ سیڈلی اپنی اوقات دکھائی تو آپ کچھ بھی کر لیں، پاکستان ایک برا ملک ہے، وہ نہیں اس کو سارٹ آؤٹ کر سکے گا. تو پلیز جب تک آپ اسکل ایسے ہوتے ہیں، ہم لوگ ڈفرنٹ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے ڈفرنٹ لوگوں کے ساتھ کام کر، ڈفرنٹ کلچر سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو انسان کا نام بھول جاتا ہے لیکن اس کے ملک کا نام یاد جاتا ہے. السلام علیکم پاکستان. دا فری لینسرز شو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایوری سیٹرڈے لے کر آتے ہیں فری لینسرز پروگرام کی جو سیریز ہم نے اسٹارٹ کی ہے، اس کی ایک اگلی کڑی ہے، آج ایک اور کڑی ہے. اور آج اس پروگرام میں دا فری لینسرز پروگرام، اور جو کہ براہ راست لاہور، اسلام آباد اور ملتان کے نیٹ ورک سے سنا جاتا ہے، دا FM 100 کے پلیٹ فارم سے. آج اس پروگرام کی اگلی کڑی ہے اور دا فری لینسرز شو میں ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں. سہیل طارق صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں، اپنے اسٹوڈیوز میں. اور میں ہوں آپ کی RJ سندوس. ڈاکٹر سندوس مستقیم اور سہیل طارق آپ کے لیے لے کر آتے ہیں دا فری لینسرز پروگرام، جس میں ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فری لینسنگ کیا ہے، اس کی امپورٹنس پر روشنی ڈالی. اور بگنرس کے لیے ہم نے پروگرامس کی ہے ڈفرینٹ. وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈفرینٹ ویز ٹو سیل یور پروڈکٹس، اور جیسے امیزون پہ خاص طور پہ ہم نے فلی فوکسڈ رہے. اور آج جناب اس پروگرام کی اگلی کڑی ہے اور اس میں مزید کچھ جانیں گے سہیل طارق صاحب سے کہ کون کون سے ڈفرینٹ ذرائع ہو سکتے ہیں جہاں سے آپ کلائنٹس کو لے کر آ سکتے ہیں. وہ لوگ جو کہ پروفیشنلی اور فائنینشلی گرو کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی ہماری یوتھ جو ہے جن کے پاس اچھی ڈگریز ہیں، اچھی اسکلز ہیں، اچھی کمیونیکیشن اسکلز ہیں اور کانفیڈنس لیول بھی اچھا ہے، بس وہ ارن کرنا چاہتے ہیں. سب کچھ ہے، بس پیسے تھوڑے سے کم ہیں. سو یہ جو پیسے تھوڑے سے کم ہیں، یہ زیادہ کیسے بڑھائے جائیں، کہ جیسا کیسے ارن کیا جائے اور اپنے پروڈکٹیو ٹائم کو بہترین طریقے سے کیسے یوٹیلائز کیا جائے، اپنی جاب کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب کون سی کی جائے. اور اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو یہ ایک سیلف ایک فل ٹائم جاب ہے. سو اس پہ بات کرتے ہیں. سہیل طارق صاحب، ہم نے گزشتہ پروگرامس میں کچھ امپورٹنس پہ بات کی اور آج کے پروگرام میں ہم جانے کی کوشش کریں گے امیزون کے اوپر. ہم نے لاسٹ پروگرام کیا تھا. آج کے پروگرام میں کائنڈلی ہمیں بتائیے گا کہ کون کون سے ایسے پلیٹ فارمس ہیں جہاں سے ہمارے جو لرنرز ہیں، بگنرز ہیں، وہ کلائنٹس لے کے آ سکتے ہیں. دیکھیں، PCO ہیں اور سارے ہی اچھے ہیں، لیکن اگین وی ہیو ٹو، چونکہ دامن وقت میں بھی کمی ہے، تنگی ہے، تو ہم ٹاپ 3 جس میں آلموسٹ 60% ریونیو ہے وہ ہم ڈسکس کر لیں گے. باقی کوئکلی صرف میں نام بتاؤں گا. نمبر 1 پلیٹ فارم مائی پرسنل فیوریٹ ہے، وہ ہے اپ ورک، جہاں سے مجھے یہ سارے میرے کلائنٹس ملے. اپ ورک اونلی اپ ورک اور کچھ بھی نہیں. لیکن بعد میں ڈاؤن دا روڈ فائبر اینڈ سوشل میڈیا جیسے فیس بک وغیرہ، وہاں سے بھی بالکل. اگین میں کبھی بھی کسی پلیٹ فارم کو ڈیگریڈ نہیں کرتے ہیں. نو میں کمیٹیڈ ہوں ٹو مائی سیلف کہ میں اس موضوع پہ بات ہی نہیں کروں گا جو میں نے خود ایکسپیرینس نہ کیا ہوں. سو ان 3 کو میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے. اور اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو فری لانسنگ کی کلائنٹیج ہے وہ 60% تک انہی 3 کے اندر ہے. اچھا، اپ ورک کیا ہے؟ اپ ورک بیسیکلی امریکن فری لانسنگ سائٹ ہے جہاں پر جو امریکن مڈل کلاس ہے. اچھا، امریکن مڈل کلاس کیا ہے؟ اس وقت امریکہ کے اندر لاسٹ ایئر کی جو ان کے، وہ تو سروے کرواتے ہیں ایئرلی بیسس پہ پاپولیشنس کا، ایوری تھنگ. پچھلے سال انہوں نے جو سروے کروایا تو 1 ملینئرز تھے امریکہ کے اندر ان ڈالرز. اور یہ مڈل کلاس ہے امریکہ کی، جو کہ دنیا کی سب سے موسٹ ریچسٹ مڈل کلاس ہے. ان کے پاس ملینز آف ڈالرز. richest middle class. Yes, they have the house, they have a good 1 or 3 vehicles, and now they want to invest with someone کہ وہ ان کو ہائر کرے اور وہ اپنے کام کا، اپنی ٹاسک کا کچھ حصہ ان کو دے دے اور اس کے بدلے وہ خود کمفرٹ لے لیں اور اور کچھ منی ان کو دے دیں. سو امریکن جو مڈل کلاس کا موسٹ ڈیزائرڈ پلیٹ فارم ہے وہ اپ ورک ہے. اپ ورک پہ آتے ہیں اور اپ ورک پلیٹ فارم کس طرح کام کرتا ہے؟ اپ ورک پہ وہ جا کے ایک جاب پوسٹ ڈالیں گے.
सिंपल जैसे एक नोटिस बोर्ड होता है, वो जाके कहेंगे कि मुझे Amazon FBA का होलसेल का एक्सपर्ट चाहिए, मेरा ये बजट है और मेरे ये टारगेट्स हैं। अब चूंकि अच्छा एक चीज मैं शुरू में बताना भूल गया, आप में से वो लोग जिनके पास स्किल नहीं है, और मैं ये 3 दफा रिपीट करूंगा, वो प्लीज किसी ये मत करें कि चूंकि इनके पास स्किल नहीं है और थोड़ा सा उनको ये माद है कि वो अपनी कहानियां सुना के क्लाइंट को कर लेंगे। एक्चुअली में आप एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। ये जो फर्स्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि आपका एथिकली मोरल ग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो गोरा है उसकी नजर में आप है पाकिस्तान। अगर आपने उसको अच्छे से डील किया, सारी दुनिया आ जाएगी, वो पाकिस्तान को अच्छा ही समझेगा। और अगर आपने उसको $10 पे सैडली अपनी औकात दिखाई, तो आप कुछ भी कर लें, पाकिस्तान एक बुरा मुल्क है, इमेज नहीं वो नहीं उसको सॉर्ट आउट कर सकेगा। तो प्लीज जब तक आप स्किल जैसे होते हैं, हम लोग डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल पर जो है डिफरेंट लोगों के साथ काम कर, डिफरेंट कल्चर से आए हुए लोगों के साथ काम कर रहे होते, तो इंसान का नाम भूल जाता है लेकिन उसके मुल्क का नाम याद रहता है। Yes. हमें जो अभी 2-3 साल पहले मतलब मुल्क से बाहर अगर मेरे कहीं बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो मुझे अगर उनका नाम भूल गया तो मुझे इतना शक्ल याद है और मुझे याद है ये बंदा कहाँ से था। सो उस बंदे का इमेज जो है बेसिकली वो उसका मुल्क का इमेज है। Yes. एंड वाइस वर्सा। तो कनेक्टिंग टू वेयर आई लेफ्ट, लाइक अब वहां पे वो जॉब पोस्ट डालेंगे, वो बताएंगे कि मुझे इस फील्ड में इस चीज की जरूरत है, और हर चीज आपको वहां मिल जाएगी। आपको वहां डेटा एंट्री की मिल जाएगी, आपको लोगो, आपको ग्राफिक डिजाइनर, वेब डिजाइनर, एवरीथिंग मिल जाएगी। अब इज नॉट फॉर Amazon इज बेसिकली पार्ट ऑफ वन स्किल जो कि बिक रही है वहां पर। आप जाके उसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक और में बहुत बड़ी मुझे चीज याद आ गई जो कि बताने की जरूरत है। दैट इज अ बिग मोटिवेशन फॉर द पीपल हु थिंक्स दैट वो स्टार्ट हैं और सैचुरेशन हो गई है, शायद उन्हें काम ना मिले, स्टफ लाइक दिस। देखें, एक लॉ है दुनिया में, उसका नाम है बेडफोर्ड लॉ। बेडफोर्ड लॉ ये कहता है कि हम सब, ये जो कायनात किसी बनाने वाले ने बनाई है, उसने हर इंसान का, हर जानदार का एक उसमें हिस्सा रखा है। अगर हम उस इकोसिस्टम में से उसको निकाल देंगे तो वो इकोसिस्टम फ्लॉप कर जाएगा। तो दैट मीन्स कि जो न्यू लोग हैं जिनको अभी तक एक क्लाइंट नहीं मिला है, कुछ लोग दुनिया में जरूर मौजूद हैं। अगेन मैं, आप लोग खुद अपने आप से सवाल करें, आप अभी तक नहीं मिले। नो, आप खुद अपने से सवाल करें। कुछ दफा हम चाहते हैं किसी नए लोग से मिले, हमने नहीं एक्सपर्ट से बात करनी, क्योंकि हम ऑलरेडी वी आर डन विद एक्सपर्ट्स। कई दफा हम करते हैं कि कई मौजूदात पे हम सोचते हैं किसी एक्सपर्ट से बात की जाए, जैसे कि हेल्थ, जैसे कि लीगल इश्यूज। बट जब हम रिफ्रेश होना चाहते हैं, सो हमको अच्छे लोगों से भी बात करके, जो नहीं होते हैं उनसे भी बात करके अच्छा लगता है। सो ये बिल्कुल इस पॉइंट को निकाल के बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि चूंकि आप न्यू हैं और इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्सपर्ट आ चुके हैं, तो आपका चांस ही नो। आउट देयर एक बंदा है जो इस एक फ्रेश बी के इंतजार में, न्यू बी के इंतजार में है, जिसको वो अपने हिसाब से ट्रेन करके अपनी लाइफ का और अपने कारोबार का हिस्सा बना ले। सो दैट डजंट मीन कि अगेन आपके पास कॉमन सेंस है, स्किल है, तो एक बंदा इंतजार में बैठा हुआ है जो कि आपके न्यू प्रोफाइल पर भी काम दे देगा। अच्छा सा उसको अप्लाई करें, एंड दैट इज इट। It's a lot motivation, dedication, intention, your hard work, your consistency and your follow-up. I always say कि follow-up रखना बहुत strong follow-up रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप कितने consistent, अगर आपने एक बार अपलोड किया, आपको क्लाइंट नहीं मिला, आपकी मोटिवेशन कम हो गई, आप डीमोटिवेटेड हो गए 2 बार, 3 बार, 4 बार, no matter how much time it takes, like another ये भी है कि आप कितना ट्राई कर, इसमें भी देखिए, मैं आपको फिर खुद कहता हूँ कि मैं अब से 5 साल पहले कोई मुझे कहता कि मैं एक आरजे को बैठा एक FM 100 पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं उसको हंसता उस पर, कभी पॉसिबल ही नहीं था। बट हियर आई एम टॉकिंग टू यू गाइस एंड टेलिंग, और अगेन आई एम नॉट हियर फॉर माई, यस मुझे पर्सनल इस पे मिल रहा होगा, बट यकीन करें आई एम अ वेरी शाय पर्सन एंड वेरी बैक बेंचर टाइप पर्सन। बट अब मैं जिम्मेदारी के तौर पे कर रहा हूँ कि यस, मुझे नए लोगों को सिखाना चाहिए, पाकिस्तान का इसमें फायदा है। और मैंने देखा है, मैंने मेरे हाथ से हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज को जानता हूँ जो माशाल्लाह 20-30 लोगों को हायर करके, और वो अपने इलाके में, पाकपतन में, खानेवाल में, वो लोग एक वो दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और अगेन फॉरेन रेमिटेंस ला रहे हैं पाकिस्तान से। सो दैट इज अवेयर। और ये लोग हैं जिनको मैंने सिर्फ थोड़ी सी, जैसे अब आपको बता रहा हूँ, मैं, आप मुझसे पूछिए मैं क्या बता रहा हूँ, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बिलीव मी, देयर इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, और मैं भी, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, आप सब एक्सपर्ट हैं, हम सब एक्सपर्ट हैं, हमें कुछ नहीं पता, इन दोनों के बीच में आपको रहना है। तो
हैविंग सेइंग दैट, अपवर्क का आपको बताया कि वहां पे एक नोटिस बोर्ड होगा, आपने वो कीवर्ड वाली साइंस मेरे पिछले एपिसोड में जाए, कीवर्ड के बारे में हमने बात किया कि हम सब कीवर्ड है। इसी तरह आपने अपनी जॉब जिसके आप एक्सपर्ट हैं उस जॉब्स को आपने तलाश करना है अपवर्क पे जाके। उसकी सर्च बार में जाएंगे, Amazon होलसेल लिखेंगे, उसकी सारी पोस्ट आ जाएंगी, जाके आप अप्लाई। किस हैसियत से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे? एज ए बिहेवियरल असिस्टेंट। अपवर्क पे 2 तरह का प्रोफाइल बनता है, वेरी गुड डायरेक्शन जिसपे आपने पॉइंट आउट किया। नंबर 1 एज ए सेलर, जो कि हम है, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, एज ए बायर, वो अलग प्रोफाइल बनता है जिसमें हम जाके यही सर्विसेज हम खरीद भी सकते हैं। तो 2 प्रोफाइल बनते हैं और हम एज ए वर्चुअल असिस्टेंट वहां जाके बाय करने की बारी तो बाद में आएगी, पहले आप अप्लाई कर रहे हैं। वो तो वो करेगा ना, बाय तो उसने प्रोफाइल बनाया है, वो हमारी सर्विसेज लेगा जी, करेक्ट। वो हमारी सर्विसेज लेगा, वो बायर का बनाएगा। स्किल्स बतानी है, आप अपनी सर्विसेज बतानी है कि आप दे सकते हैं। प्रोफाइल बनाना भी, अपवर्क का प्रोफाइल बनाना भी एक पूरा आर्ट है। हर किसी को वो नहीं देता, उसकी भी एक साइंस और आर्ट है, जो कि अगेन मैं किसी उसमें डाल दूंगा कि उसको कैसे आप अपवर्क का प्रोफाइल बना सकते हैं। लेकिन अगेन दोबारा कह रहा हूँ, प्लीज फॉर गॉड सेक, जब तक आपके पास स्किल ना आ जाए, जब आपको थोड़ी सी तसल्ली दिल की ना हो जाए कि मैं किसी को कुछ डिलीवर कर सकता हूँ, डोंट गो आफ्टर एनी क्लाइंट्स। अच्छा, अभी मैं आपको तीसरे इसके यहाँ पे बताऊंगा कि आप विदाउट गोरा क्लाइंट भी अब कुछ क्लाइंट से कनेक्ट, पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी तो होंगे ना, उसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा, सेकंड मोस्ट सेलेबल और लाइकली जो प्लेटफॉर्म है वो है फाइवर। अच्छा, फाइवर कैसे काम करता है? फाइवर में आपने अपना एक नोटिस बोर्ड बनाना है, अपनी गिग्स बनानी है। वो अपने नोटिस बोर्ड का नाम उन्होंने रखा हुआ है गिग्स। अगेन में वो वेरी प्लेनली और वेरी, कुछ मोस्टली ऐसी टर्म्स हैं जो गाये बगाए हमारी नजरों से गुजरती हैं, लेकिन नहीं पता होता ये क्या है बेसिकली। मेरे अपने नोटिस बोर्ड है, आपने बताना है कि मैं ये स्किल में रखता हूँ, ये मेरे टेस्टिमोनियल्स हैं, ये मेरे सबूत हैं, ये मेरे चार्जेस हैं, और ये मैं दूंगा। अपनी जब सर्विसेज आप आएंगे तो इतने पैसों में इतने दे दूंगा। और ये आप अब उसमें क्या करते हैं कि लोग खुद जाके वो आपको सर्च आउट करते हैं और आपको आपकी अगेन रिव्यूज से पढ़कर और आपकी रैंकिंग पढ़कर उधर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। आप अगर 8वें 9वें पेज पे है तो आपका मोस्ट लाइकली चांस ही कम है। अपवर्क इज समथिंग लाइक दैट कि उधर आपको खुद जाके करना है, नए बंदे की भी चांस है। मैं अगेन ऐसी कई, अभी पिछले हफ्ते की भी एक स्टोरी, 2 स्टोरी जानता हूँ जहाँ पे एक बंदे ने स्किल के बाद 6 महीने की स्ट्रगल के बाद प्रोफाइल बनाया और उसको फॉरेन अमेरिकन क्लाइंट मिल गया। और दैट मीन्स $1,000 $800 पर मंथ easily, or that means कि probably in 2 years this person has to earn around $5,000 to $8,000 per month. What a success story. Simple. और ये तो पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में फैली पड़ी है। आप में से कोई भी अगेन मुझे अप्रोच करे, मैं उसको उसके शहर में बताऊंगा कि ये बंदे से मिल लो, he knows me and he's earning $5,000. So it is very normal. अच्छा, फाइवर पे आपने अपनी गिग बनानी है, क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा, निगोशिएशन ऐसा नहीं होती, आपके डिलीवरी पे बात होती है मोस्टली। वो कुछ कस्टमाइजेशन की बात करेगा और इस तरह से, और आप उसे अपनी सर्विसेज भेजेंगे, और वो चीप प्लेटफॉर्म भी है। वाई अपवर्क जो है उस पर आवर के हिसाब से डीलिंग होती है, वो फिक्स लोगों के लिए नहीं है। जो फाइवर है वो फिक्स लोगों के लिए फिक्स होता है। आपने बताना है कि मैं $20 का ये वेबसाइट बना के दूंगा, $30 में लोगो बना के दूंगा, सो ऑन। और जैसे कि अमेजोन की लिस्टिंग के $100 चार्ज करूंगा, दैट इज इट। जो अपवर्क है वहां पे आपको पर आवर वो पे करेगा, जो कि 3.99 उसका मिनिमम पर आवर है, मतलब कि आप मिनिमम ये है, इससे नीचे तो है ही नहीं। $3.99 पर आवर इसका लोएस्ट है, लास्ट। और आप मुझसे पूछे मैंने लास्ट कितना चार्ज किया है, आखिरी जब मैंने फिर अपवर्क, क्योंकि मेरी रेफरल बहुत हो गई थी यूएसए में, तो $60 पर आवर मैं चार्ज करता था 2 साल पहले। उसके बाद फिर इन्हीं मेरे अमेरिकन क्लाइंट से मुझे कहा कि भाई इन्होंने क्वालिटी ऑफ द वर्क देख ली, तो उन्होंने कहा आप अपवर्क बंद करें, आपको जो क्लाइंट चाहिए हम आपको देते हैं। तो मैं उनको ही नहीं पूरा कर पा रहा था, अपवर्क को कहां से बात, तो आई शट दैट फ्रीज दैट अकाउंट आप। अच्छा, अब इन दो अगेन अभी मैंने इन दोनों की जो इंट्रोडक्शन दी है, मेरे कुछ एक्सपर्ट दोस्त उसको सुन रहे होंगे जो जानते हैं कि बिल्कुल ये मैं उनको खुद बता रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करूँ, ये बिल्कुल बेसिक लोगों के लिए, जस्ट टू इंट्रोड्यूस टू पीपल। जब आपके 2 लोगों का इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं तो बेसिक बात बताते हैं कि ये इनका ये नाम है और ये इस कौम से इनका ताल्लुक है, और ये उससे कितने समथिंग लाइक दिस, फंकी वे में। बाकी ये खुद ही आपको खुद करना है मेहनत। उसके लिए अगेन जैसे मैंने बताया, यूट्यूब पे जाएं, फाइवर पे रैंक करना है, वो पूरी एक साइंस है, उसको समझें। अपवर्क की प्रोफाइल
कैसे बननी है, पूरी एक अगेन कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। थर्ड जो तरीका है, अगर अब अगेन मैं आपको एक थर्ड वे बता रहा हूँ काम लेने का, उसमें गोरे भी बिल्कुल आ सकते हैं लेकिन पाकिस्तानीज भी आपको आ जाएंगे। इनिशियली सब लोग ये कर लें। देखिए अब अगर आप जाके अमेज़न या फ्रीलांसिंग या ई कॉमर्स डालें तो आपको पाकिस्तान में भी कई ग्रुप्स मिल जाएंगे, वो सारे आप ज्वाइन कर लें और आप जाकर स्मार्ट वर्क बने। अगर स्किल आपने सीखा, अगर स्किल तो जरूर आपको, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बात की, लास्ट से लास्ट, एक स्किल को तो आपकी एटलीस्ट बेसिक आपके काबू में होनी चाहिए। प्रैक्टिस की भी बात नहीं की है, प्रॉपर हर उसकी जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल प्रोसेस है, वो आपको कहीं ना कहीं लिखे हुए नोट्स बना के आपके पास होने चाहिए। अब आप क्या करेंगे, उन प्लेटफॉर्म्स पे जाएं और जाके लोगों के सवालों के जवाब देने स्टार्ट कर दें, या आप एक प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दें, अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए, पोस्ट बना लें, के लिए, यस, कुछ भी, हाँ, विजिबिलिटी, इसको हम कहते हैं विजिबिलिटी। Okay, that you're there. अब with such due skill set you are there. Yes. अब मैं अगेन जो मेरे, अब हम लोग तो सब है पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, मोस्ट लाइकली फेसबुक को एक वो टेस्ट केस बना लेते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपने कभी किसी मौजू पे सोच रही हो जिसपे आपकी इतनी एक्सपर्टीज ना हो, और आपने देखा कि एक बंदा है जो उसके बारे में कुछ बता रहा है और आपने रुक के उसको पढ़ाओ कि हाँ सुनो तो, हाँ अच्छा ये तो बड़ा एक्सपर्ट लग रहा है, ऐसा ज़हन बन गया होगा ना, सिंपल एज दैट। और अगेन मैं इसको अगेन ये चूंकि हम लोग ऑनलाइन इस तरह से नहीं करते हैं, मोस्ट लाइकली ये भी तो हो सकता है कि आपने किसी डॉक्टर का पोस्ट डाली हो कि क्या मुझे कोई अच्छा, या फाइबर पे बता रहे हैं, नो सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया जनरली कि आपको एक वेट की जरूरत हो, तो आपने पूछा कि कोई इस एरिया में अच्छा वेट है, तो आपको किसी ने बताया हो कि हाँ फलां डॉक्टर फलां से मिलने, वो बड़ा अच्छा वेट है, स्टफ लाइक दिस, या इलेक्ट्रिशियन, या कुछ आपने टेक्निकल बंदे की रिकमेंडेशन, या अच्छी बुक्स की, या मैं क्या पोस्ट करता रहता हूँ हर चौथे पांचवें छठे महीने कि मैं बच्चों से पूछता हूँ, क्योंकि मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कोई अच्छी सीजन इस तरह के जेनेर में हो तो रिकमेंड कर दे। लास्ट टाइम किसी ने मुझे मार्को बोली, आप भी देखें, बहुत कमाल की है, जो कुबलाई खान है, द सेकंड बिगेस्ट खान ऑफ मंगोल एम्पायर, उसके बारे में मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं उसको 2 दफा देख चुका हूँ। तो मतलब वो मुझे किसी ने कहा कि सर आप ये देख लें, इस जेनेर में बड़ी अच्छी है, तो मैंने वो देख ली। सो कहने की बात है कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्रोडक्टिविटी और क्लाइंट गैदरिंग, और अगेन अब पाकिस्तानी इधर ये करते हैं जो कि मैंने अगेन रोकता हूँ कि प्लीज लोगों के इनबॉक्सेस बेसिकली ऐसा है किसी की जेब में हाथ डालना, ये बेसिकली ऐसा है किसी को हक करने की कोशिश करना। पीपल डिसलाइक दैट। हर पढ़ा लिखा और एक समझदार और एक अक्ल बालिग आदमी नहीं चाहता कि आप उससे फौरन फ्रैंक होने की कोशिश करें, और सोशल मीडिया नॉर्म्स के मुताबिक अगर आप मेरे इनबॉक्स में आ रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट एक बदतमीज किस्म का काम है। डोंट डू दिस, डोंट सेंड समवन, आस्क फॉर द मोबाइल नंबर्स जब तक आप एक बेसिक उनके साथ कनेक्शन ना कर सके, तो ये मत करें। हाँ वो खुद आएगा। अब मुझे देखे ना, अब सपोज मुझे सर में दर्द है, नहीं जा रहा है, और कोई बंदा ये पोस्ट डाल दे कि मैंने 50 ऐसे लोगों का सर दर्द का इलाज किया जो ठीक नहीं हो रहा था, और मैंने जब उसके कमेंट्स पढ़े तो 4 लोगों ने कहा आई एम द वन। सो कितनी सेकंड के अंदर मैं आपके इनबॉक्स में पहुंच जाऊंगा, मिनट के अंदर, खुद कि सर प्लीज कोई रहम करें, मेरे सर का दर्द ठीक कर दें। सो आप जस्ट पोर्ट्रे योरसेल्फ, योर बाय द वे, मैं आपको बी ए ब्रांड, आपको पता है पेजेस बिकते हैं। अपनी जो आपकी जो फेसबुक की प्रोफाइल है, इस पे जो पोस्ट डालते हैं, इसको भी जरा सा सिविलाइज करें, ये भी बेहतर हो, क्योंकि क्या करेगा एक क्लाइंट, वॉल आपकी इमेज है, ये आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है। आप आपका कमरा डिसऑर्गेनाइज्ड है, नोबडी केयर्स, बट ये चीज एक पढ़ा लिखा जो बंदा होता है वो जैसे किसी को, अब इसमें से भी 2 लोग होंगे, एक डेस्पराडो जो फौरन ही देखेंगे अच्छा इतनी बाली में आ जाता हूँ, ऐसे चंद हैं। गोरे ने या पाकिस्तानी समझदार लोग भी ये करते हैं, वो जाके आपकी प्रोफाइल को रीड करेंगे कि ये बंदा क्या काम कर रहा है। वहां तो आपने शेयर किए हुए बहुत कुछ पता चल जाता है, प्रोफाइल बहुत कुछ पता चल जाता है, आपकी जो टैगिंग हुई हुई है, आपके दोस्त आपको जनाब एक यू नो किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं अपलोड अ लॉट, और यू जस्ट आपके को ठहरा हुआ है शख्सियत में, ये पता चलता है, आपकी प्रोफाइल से पता लगता है। आप उससे इसलिए अपनी प्रोफाइल Some people tend to share everything and that's not healthy approach. Every silly thing, you know, इतनी पैथेटिक चीजें हैं। और देखिए मैं बिल्कुल शेयर भी करता हूँ और मुझे पसंद भी बहुत है,
لیکن ایک ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے جب آپ کو لگے آپ کو شیئر کرنا چاہیے, give it a second thought کہ یہ آیا کہ واقعی آپ کو یہ شیئر کرنا چاہیے کہ نہیں. میں کب کرتا ہوں, میں جب ایک شیئر مجھے اچھا لگتا ہے, میں اس کو, میں نے کیا کیا ہوا ہے اگین تھوڑا ٹائم دیتے ہیں. نو میں نے ایک اور واٹس ایپ کا نمبر بنایا ہوا ہے, میں اس پہ پھینک دیتا ہوں. اس وقت میں کبھی بھی شیئر نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ میرا ایک موڈ ہوگا, یہ دیٹ نیڈ ٹو بی کریکٹ. اگر پھر 2 ہفتے کے بعد جب میں دوبارہ اس کو اور وہ اچھا لگے تو پھر میں اس کو کبھی نہ کبھی ضرور شیئر کروں. Give it some time, yes. So آپ بھی یہ ہر چیز, میں کسی سے پوچھتی نہیں ہوں, میں خود ہی اپنے آپ کو ٹائم لیتی ہوں, خود اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ میرا امپریشن کیا پڑے گا اس کو پوسٹ کرنے کے بعد. That's the point. لیکن اگین میرا یہ سوچ ہے کہ ایک خاص موڈ میں ایک خاص طرح کی چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, اس موڈ سے نکلنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے, اچھا برا اور ہمیں خود نہیں پتا ہوتا. ہم اس وقت سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت ہی اچھا سوچ رہے ہیں, لیکن ایٹ دیٹ ٹائم ہم آپ کو نہیں پتا تھا ہاؤ پروڈکٹیو اور سلی اٹ از, یہ آپ کو کچھ دیر بعد ریئلائز ہو, تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ریئلائز ہوتا ہے, یا اگین اس رات کے بعد جب ہم سو کے اٹھتے ہیں, بھی کچھ گھنٹوں کے بعد کچھ منٹس کے بعد آپ کو ریئلائز ہوتا ہے, بٹ دیٹ ویری مومنٹ اس میں ذرا اوائڈ کیجیے انسٹنٹلی کچھ بھی شیئر کرنے سے. جو نائٹ سلیپ ہے, آپ کو میں بتاؤں کہ خدا نے کہا کہ میں جب کسی کو بہت کچھ بلیسنگز دینا چاہتا ہوں تو میں اچھی سلیپ دیتا ہوں اس کو. یہ قرآن میں کہیں ہے, اگر میں مس کوٹ کروں تو ایسا نہیں تھا. تو اچھی نیند کے بعد آپ جب بھی دوبارہ اسی چیز کو پڑھیں اور آپ کو اچھی لگے تو دیٹ مینس پھر وہ اچھی ہے. یہ میں نے اپنے لیے ایک وہ بنایا. خیر یہ جو ری شیئرنگ ہو رہی ہے یہ نہیں کریں. Nobody wants to listen. بہت سوچ سمجھ کے, اور وہ بہت ڈیسنٹ ہونی چاہیے. میک یور امیجز جو آپ کے, اگین یہ ہر کسی کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ان لوگوں کے ہو رہی ہے جو فری لانس کی ورلڈ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں. سو ان کے لیے ہم کسی بھی پروفیشن میں آپ اپنا کیریئر, کسی کے لیے بھی, ہاں میں بالکل, ہاں جیسے ڈاکٹر ہے اور میں ڈاکٹر کی پروفائل پہ جا کے دیکھوں کہ اس سے ڈسی بلال کے گانے کیے ہوئے, دس از پیتھیٹک, دس از something amazingly pathetic. So وہاں بلال ہماری بہت اچھی سینئر بڑی ہے, لیکن still جو ان کے ٹارگٹ آڈینس مختلف ہے, بٹ آرٹسٹ ہیں, ان کے کافی ان کا جو کام ہے وہ, میں بھی ان کی ایک دو میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں. بٹ آپ یہ پہلے کہ آپ انٹرٹینمنٹ کو اپنی پروفیشنل پروفائل سے ڈفرینٹ رکھیے گا, اس کو سیپریٹ رکھیے گا, اور آپ کی پروفیشنل جو بھی آپ کی پروفائل ہے وہاں پر آپ انٹرٹینمنٹ جانرا سے جو کچھ بہت ایکسیسولی شیئر کرنے سے اوائڈ کیجیے. ونس ان اے بلو مون ایکسیپٹیبل ہے اگر آپ کچھ بہت ڈیسنٹلی پوسٹ کریں, لیکن ابھی پروفیشنل مذہب کو کمنٹس پالیٹکس اس پہ, مذہب پہ, پالیٹکس پہ ڈونٹ ڈو دس. اگین اپنی پروفائل ایک آپ کا ایسٹ ہے, اس کو ایسے بلڈ کریں. People want to know you. Don't indulge yourself in so many deep discussions. کسی بھی طرح کی deep discussions کا حصہ بننے سے avoid کیجیے. یہاں پر بعض اوقات آپ کے دوستی کے بجائے آپ کے معاملات کچھ خراب بھی ہو جاتے ہیں. ایسی چیزیں کرنے سے بھی avoid کیجیے. So social media کو third میرا most likely وہ ہے جو میں ان کو ریفر کروں گا. Firework and social media. Social media میں اچھا, اب میں کچھ پلیٹ فارمس کے جسٹ نام بتاؤں گا کوئکلی. آپ کو بڑی حیرانی ہوگی سن کر ان کے نام, آپ کے آڈینس کو, آپ کو تو نہیں, یو آر لرن وومن بٹ یو نو یور آڈینس. آپ کو پتا ٹویٹر کا نام آف کورس ہم نے سنا ہوگا, لیکن اب میں 2-3 نام لیتا ہوں جو کہ اگین میں آلویز یو ایس اے کو بڑا لائک کرتا ہوں. اس کی کئی ریزن ہے. میں ٹویٹر پہ تو پورے تھیسز ہو رہے ہیں لائک لیکن آپ کو سن کے بڑی خوشگوار حیرت ہوگی کہ یہ جو جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان سب کا پیک ٹائم آ چکا ہوا ہے, اب یہ ڈکلائن کی طرف ہے. مینس کہ جو ان کی بگیسٹ سائنج تھی وہ یہ آلریڈی اچیو کر چکے. ٹویٹر, اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام, سب. ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو ابھی تک پیک ٹائم اسے نہیں دیکھا, اس کا نام ہے ریڈٹ. ریڈٹ امیرکن کا موسٹ لائکلی, اور وہ جب سے بنا ہے 2012 سے وہ اوپر کی طرف ہے, ابھی تک اس کو ڈکلائن نہیں آیا. ایک پیک ٹائم بھی نہیں آیا, ابھی تک نہیں آیا. they don't know like how to just heard a name. Reddit. سیکنڈ پلیٹ فارم ہے جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, اور آپ وہاں اس کو جوائن کریں, آپ کو پتہ لگے گا دس از سم تھنگ ادر ورلڈ میں آ گیا. یہ بھی ہے بٹ یہ کچھ اور ہے. ایک اور ہے وہ ہے کورا, QUARA. جی بالکل, کورا, ادھر جائیں, ادھر سنیں. پھر کچھ ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ آپ ایسے سوشل میڈیا تو نہیں کہتے, لیکن آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں, وہاں سے آپ اپروچ کر سکتے ہیں, جیسے کہ LinkedIn.
बहुत पावरफुल प्रोफाइल है, बहुत पावरफुल है। अगर आप वहाँ पे एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाए और अच्छे से उधर कुछ टाइम गुजारें, यू स्टार्ट गेटिंग लाइक अगेन, जैसे मैंने सोशल मीडिया वाले भी हम उस टॉपिक की बात करते हैं, ये सब एक बेचने की, आपने अपने आप को सेल आउट करना है। फ्रीलांसिंग इज अबाउट टेलिंग योरसेल्फ। अभी भी अगेन मैं आपको एक वेरी बेसिक मिसाल से करता हूँ कि जो बार्बर हजरात हैं, आपको अपने ही शहर में एक बार्बर मिलेगा जो प्रॉब्ली $50 हेयर कटिंग के चार्ज कर रहा होगा, और आपके शहर में आपको एक बार्बर मिलेगा जो शायद 5000 भी मेरा ख्याल है थोड़ा है उसके लिए उसी काम का। व्हाई? ब्रांडिंग, लुक्स, एडवर्टाइजमेंट, हाउ ही टॉक, हाउ ही, इसका एटमॉस्फेयर क्या, यही आपका प्रोफाइल है। जितना उसको रिफाइन करते जाएंगे, लोग आपको खुद, जो आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे नहीं ये तो $50 पर आवर से कम में नहीं आने वाला। सो ये सारा कुछ आपने इस तरह से करना है। अच्छा, और कुछ और प्लेटफॉर्म, अच्छा ट्विटर जैसे, ट्विटर भी, अब यूट्यूब को भी मैं सोशल मीडिया कहता हूँ क्योंकि वहां पर भी निश फ्रेंडली लोग हैं। यूट्यूब एंड गूगल, इनको तो समझ लें कि ये तो मैनकाइंड पे एक ब्लेसिंग है कि आप सोचे ना, हमें दुनिया की, कभी आपने सोचा ग्लोबल विलेज बनाए ही आप सोचे कभी आपने सोचा था कि कभी ये होगा? मैं चूंकि आई एम ओल्डर देन यू, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं जस्ट दुनिया का हर नॉलेज एक डिवाइस लूंगा और मेरे हाथ में होगा, मैं कहूंगा हाउ टू, तो मुझे हर स्किल मैं देख सकता हूँ, ऑडियो वीडियो फॉर्म में, एनीवे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वो कब पैदा हुआ, वो कब मर गया, दुनिया का कोई, और अपने कन्वीनियंट लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, देखना चाहे देख सकते हैं, जस्ट राइट हाउ टू, गूगल विल हेल्प यू। यस, सो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन करें और अगेन उसको ऑब्जर्व करें। शुरू में जाके तहलका ना मिलेगा, ना देने की जरूरत है। अच्छा, जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है वो भी मैं आपको 4-5 बताता हूँ, जैसे लोगों ने, मैंने नहीं किया लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया, जैसे peopleperhour.com, freelancers.com, guru.com, freelancers.com, guru.com, बिल्कुल, बट अगेन का मार्केट people per hour, ओके, ये सब है। और बिल्कुल इसमें गाइस, आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे, जो हमारी कंसिस्टेंट लिसनर्स और व्यूअर्स हैं, आई एम प्रीटी श्योर वो लोग नोट भी कर रहे होंगे। नोट करना चाहिए। मैं एटलीस्ट आई एम ए सीरियस पर्सन, आई एम नो बुलशिट पर्सन, सो मेरा तो मुझे तो, और हमने शो को किया भी, मेरा ख्याल 5वां या 6ठा एपिसोड है, हमने जो भी बातें की हैं वो हेडशॉट्स देने की कोशिश की। तो यस, जब आप हमें सुने, लेकिन यूट्यूब का भी अपने 5 प्रोग्राम्स के आपने जो है अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, ये YouTube पे भी अवेलेबल है, बट स्टिल जब आप YouTube भी ले रहे होंगे, मैं रिकमेंड करूंगी अगर आप YouTube पे, सॉरी टू कट यू सर, कि अगर आप वेरी फर्स्ट प्रोग्राम से फॉलो करें तो फ्रीलांसर शो की जो है एक नोटबुक बना लीजिए और इस प्रोग्राम वाइज जो है आप अपने नोट्स लीजिएगा, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको देखना पड़े तो आपके जो अपने नोट्स लिखे होंगे सो वो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे अगर आप देखते रहेंगे तो। सो ये कुछ और प्लेटफॉर्म है जो कि अगेन काम कर रहे हैं, इस पे भी लोगों को मिले हैं, अच्छे क्लाइंटेज मिली है, और आप इधर भी जाके अपने प्रोफाइल्स बनाएं। और अगर चौथे नंबर पे मुझे रखना है तो लिंक्डइन होगा, लिंक्डइन पे अच्छा सा प्रोफाइल बनाएं, वहां से अच्छे जल्दी रिजल्ट आते हैं। फिर गुरु, peopleperhour, freelancer.com, ये भी बहुत अच्छे और भी हैं। आप टॉप 20 फ्रीलांसिंग साइट्स के हैं तो आपको दे देंगे, सब पे बना लें। मैं 2 का तो खुद हूँ कि वहां, और वो मार्केट शेयर भी उनके पास है 60%, एंड प्लस सोशल मीडिया कि अब आप फेसबुक का जो प्रोफाइल है अपना, और अपनी वेबसाइट इज अ वेरी पावरफुल थिंग। $10 की एक डोमेन आ जाती है $15 की, और उसको आप अगेन फाइवर पे जाएं, वहां से आप खरीदें लोगों की सर्विसेज, और एक अच्छी सी $300 में, $150 में, $200 में एक वेबसाइट बना लें, जहाँ पे आप अपने बारे में, ये एक रिकग्निशन होती है, लोग रिकग्नाइज करते हैं। आप जब अगेन लोग, कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, वही कहते हैं कि सर हमें काम नहीं मिल रहा, और एक और बंदा कहता है कि मुझे तो सर काम की कमी नहीं है। तो जब मैं उससे जाके पूछता हूं, टाइम नहीं है, उसके पास फ्रीलांस का काम है। फ्रीलांसर्स को हमेशा मैंने देखा जिनके पास जो है वो काम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता नया काम पकड़ने के लिए। बिल्कुल, और मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुमने ऐसा क्या किया, तो फिर पता लगता है वो डिजिटल एसेट्स उसके बहुत बेहतर है दूसरे से। दूसरा सिर्फ ये समझता है कि मैं कहूंगा मुझे काम दे तो काम मिल जाएगा। So you have तो आपका अपना स्पार्क, अपनी मोटिवेशन, आप कितने कंसिस्टेंट, एज ऑलवेज कंसिस्टेंसी इज द की
اور آپ کتنا آگے بڑھ کر جو مزید پروسیڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی جناب پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا. آنے والے پروگرامس میں آپ کو مزید بتائیں گے. آئی ہوپ کہ اب تک اگر آپ ہمیں کنٹینیوسلی فالو کرتے آ رہے ہیں تو آپ کا بڑا اچھا سا نہ صرف مائنڈ بن گیا ہوگا بلکہ آپ کے پلیٹ فارمس بھی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہو چکے ہوں گے, اور اگر اسٹیبلشڈ ہیں تو ری اسٹیبلش ہو چکے ہوں گے. سو ہماری کاوش یہی رہے گی جناب کہ آپ کو سکھاتے رہیں, بتاتے رہیں, دکھاتے رہیں اور آپ کو مزید گائڈ کرتے رہیں, ٹرین کرتے رہیں. سہیل طارق صاحب جیسے ایکسپرٹس جب تک ہمارے درمیان موجود ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ فری لانسنگ کے شعبے, فری لانسنگ کی دنیا میں جو ہے مزید وہ ترقی کر سکیں, اور نہ صرف خود اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بلکہ اپنی اوور آل ملک کی اکانومی میں بھی جو ہے اپنا شیئر ڈال سکے. سر بہت شکریہ آپ کی تجربے کے لیے, ایک بہت ہی پروڈکٹیو پروگرام کو ایک بار پھر سے ہمارے سامعین اور ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. مجھے ڈاکٹر سندوس مستقیم کو اجازت دیجیے FM 100 کے پلیٹ فارم سے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.